السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے ریحان بھائی، آپ جو بتا رہے ہیں کہ دار حدیث کو فالو کرنا چاہیے اور جو امام میں جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ کیوں ہیں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو امام ہے وہ بھی حدیث کو ہی فالو کر رہے ہیں، اور بات رہی کہ ڈفرینٹ کیوں ہے، الگ الگ کیوں ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے حدیث سے ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤں کی وجہ سے ہی تو امام صاحب جو ہوتے ہیں نا اپنے اپنے ہی ارادے مطلب قرآن سے دلیل لیتے ہیں، تو وہاں جو جر کے جو بنیاد ہوتے ہیں نا تو وہی ہی بتاتے ہیں، جیسے کہ امام حضرت ابو حنیفہ ہے، پھر ان کے مخالف حضرت امام شافعی ہیں، لیکن ہم چاروں امام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن چاروں امام کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، بات رہی کہ آپ ایک ہی امام کو کیوں فالو کر رہے ہیں، ہاں، لیکن اگر آپ دو امام کو فالو کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا، آپ کو کسی نفس مطلب کسی چیز میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی گناہ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کس کو فالو کروں، کیونکہ یہاں پر دو راستے ہیں، تو یہ راستے اس بنا پر ہیں کہ آپ ایک ہی امام کیوں چل کے چلنا ہے، آپ ایک امام کو فالو کر کے کیوں نہیں چلتے؟ میں بول رہا ہوں کہ مطلب ایک امام ہے، امام انبیاء ہم لوگ ان کے راستے پہ چلنے کا، کیونکہ جیسا چار امامہ ہیں، چار اماموں بے شک مانیے، مطلب چار اماموں کو ماننے کا، ایک امام کو نہیں، چار اماموں کو ماننا اچھا ہے، بیکاز کیونکہ جیسا امام ہم لوگ فار ایگزامپل مسلم ایک جماعت ہے، مسلم ایک جماعت ہے، اس کے اندر فار ایگزامپل اس کے اندر ایک گروہ بولتا ہے کہ ایک گروہ مسلم ایک جماعت ہے، ایک گروہ بولتا ہے کہ میں بعد میں یہ چیز کو میں مانتا ہوں، میں دوسری چیز کو میں نہیں مانتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل امام شافعی کے نزدیک میں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں امام حنیفہ کے نزدیک میں پوری کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ دونوں کے اب حدیث میں کیا ہے، اب عورت کو جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سہو میں جاتے وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پاؤں لگ گیا تھا، پاؤں لگنے سے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویسے تو وضو کو مطلب نماز کو روک دینا چاہیے نا، نماز کو روک کے واپس وضو کرنا چاہیے نا، اور ویسے صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جیسا بھی خون کا معاملہ آنے سے تو یہ کیا بولتے ہیں، امام حنیفہ بھی اپنے رائے دیتے، جیسا ناجائز چیز باہر نکل رہا ہے، جیسا ہم لوگ رائے کیا دیتے ہیں کہ پیشاب باہر نکل رہا ہے، ویسے پیشاب بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے، ایسے دیتے ہیں، اور رائے نکل کے بول کے دیتے ہیں کہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا، ہاں وضو کرنا پڑے گا، مگر جب صحابی کے ٹائم میں زخم لگنے کے بعد تو تھوڑے صحابی کیا کرتے تھے، دبا کے پٹی مار کے سیدھا وہ وضو کر کے شروع کر دیتے تھے، وضو مطلب وضو بھی نہیں کرتے تھے، جب وضو میں رہنے سے سیدھا وضو ہو جاتا تھا، مگر ان کے وہ پٹی سے بھی ان کو خون نکلتا تھا، تھوڑے لوگ کیا کرتے تھے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ خون بھی بہہ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ویسے چھوڑ کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اور یا ابھی جیسے یہ ہے، اب یہ جیسے یہ دونوں گروہ میں سے ایک بٹ گئے نا، میں یہ چیز کو فالو کرتا ہوں، میں یہ چیز کو نہیں فالو کرتا ہوں، ایسا کیوں رہنا چاہیے، جبکہ ہم حدیث میں یہ چیز دونوں چیز ہے کہ دونوں چیزیں وضو ٹوٹتا نہیں ہے، سیدھا آپ نماز پڑھ نہیں سکتے، حدیث میں یہ چیز ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، جیسا امام حنیفہ کے ٹائم میں حدیث کا کمپائل کرنے کے لیے بہت کم سورسز تھے نا، ایسے میں ان کو میں پورا غلط نہیں بتاؤں، اس میں ایسا نہیں ہے، ان کے ٹائم میں بہت کم سورسز تھے، جیسے امام شافعی کے ٹائم میں اور تھوڑا سورسز پڑھے، باتیں امام بخاری کے ٹائم میں اور تھوڑے سورسز پڑھے، تو کیا کرے تھے بھائی اچھا ٹھیک ہے یہ چیز صحیح ہے، کیونکہ امام بخاری پڑھ کے یہ چیز غلط مطلب کیونکہ ان لوگ یہ چیز ڈاؤٹ آتا تھا نا، ڈاؤٹ آنے سے یا تحقیقات کرتے تھے، بہت سخت تحقیقات رہتے تھے امام بخاری کا، جیسے ادھر سمجھے امام بخاری فار ایگزامپل سیریا میں ان کو ایک صحابی ملے، سیریا میں بھی ایک صحابی ملنے سے اچھا ٹھیک ہے مسجد چل کے مدینے بھی ہجرت کر کے جائیں گے، مدینے میں بھی تھوڑے صحابی مل کے وہی سیم چیز ملے گا ان کو، سیم چیز مل کے اور اچھا ٹھیک ہے یہ صحابی بھی صحیح ہے، یہ کیا بولتے ہیں، اور
ये आदमी भी सही है, आदमी का चीज़ भी जो रावी है ना, जो रावी को भी लोग देखते थे, ये रावी कैसा आदमी है, नेक आदमी है, ये नेक नहीं आदमी, वैसे देखते थे इमाम बुखारी। तो वैसे इमाम बुखारी का वैसा लक़ब था उनका पूरा। बेशक, लेकिन बात रही यहाँ पर कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाद भी इमाम मुस्लिम है, ठीक है। हाँ। उनके बाद इमाम दाऊद, इमाम हनीफा बाहर से था, मतलब 6 किताबें हदीसें थे। बात रही कि हज़रत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी हदीस को ही फॉलो कर रहे थे, हाँ। ठीक है, राइट। और हदीस को ही फॉलो करके ही चल रहे थे। कहीं के पर कुछ हदीसें टकराता है किसी दूसरे के हदीस से, ठीक है। तो उस टकराने की वजह से हज़रत इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक आप बोल रहे हैं कि दोनों के अलग अलग रास्ता क्यों है। तो रास्ता इस बिना पर है कि दोनों हदीस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, राइट। लेकिन आप जो बोलेंगे दोनों सही है, हाँ, दोनों को फॉलो करके चलना चाहिए। लेकिन क्या है ना, अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान अगर किसी औरत को छू लिया, ठीक है, किसी औरत को छू के आ गया, तो उनके नज़दीक इमाम शफी नज़दीक वजू टूट जाता है, राइट। तो हज़रत अबू हनीफा नज़दीक वजू नहीं टूटता। फिर वो इंसान नमाज पढ़ रहेगा, क्यों पढ़ेगा नमाज? क्योंकि वो सोचे, वो बोलेंगे कि हज़रत अबू हनीफा नज़दीक वजू नहीं टूटते। अगर उसकी एरी, यहाँ पर एरी के दोनों में टकरा हुआ है, एरी की बात पर, एरी की वजह से कि एरी अगर खून निकलता है ज़्यादातर, इमाम शाफी के नज़दीक वजू नहीं टूटता एरी, ठीक है। और इमाम हज़रत अबू हनीफा के नज़दीक वजू टूट जाते हैं। तो इसी बिना पर आपको किसी एक को ही फॉलो करना है, हाँ। तो अब क्या है कि हम इनको अपना मतलब क्या है टीचर मानते हैं, मतलब उस्ताद मानते हैं सबसे बड़े, हाँ। और सबसे बड़े उस्ताद मानते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं है, दूसरा भी है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ही को भी फॉलो करके चलना है। अगर आप दोनों को फॉलो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात अलग अलग, ठीक है। बात रही आप जो बोले कि आप दोनों सही है, तो दोनों सही है, तो फिर किस रास्ते पर है, हाँ। तो अब हज़रत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु से पहले भी आया, आप जो बता रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ज़्यादातर है ना हज़रत इमाम अबू हनीफा के फॉलोअर ज़्यादा है, बात रही। और फिर जिस तरीक़ा से आपने हदीस को, दोनों हदीस को ही फॉलो कर रहे हैं, बात रही कि हदीस को ही फॉलो कर रहे हैं, हाँ। अब ये डिफरेंट क्यों है, तो ये चीज़ मैं बोलूँ, जैसे देखिए उम्र से मुझे ये याद नहीं, ये याद है मेरे को, कुरान कंपाइल हो रहा था, कंपाइल होते वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु टाइम में नहीं हुआ था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का टाइम में हुआ था। और उमर रज़ियल्लाहु अभी कुरान को कंपाइल करने के लिए, मतलब क्या मिला, मतलब एक जगह एक साथ रखने के लिए 2 साहबी को दिए थे, एक उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, एक अली रज़ियल्लाहु अन्हु, एक जगह रखने के लिए दिए था। मतलब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे, अच्छा ठीक है, ये किताब है, ये कुरान शरीफ है, इसको फॉलो करने का है। और शिया वाले अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ही फॉलो करते हैं। थोड़े लोग बोलते हैं कि शिया के 40 पारे वो गलत है, 30 पारे होंगे भी, क्योंकि एक शिया पे भी बयान, लेकिन हाँ शिया में भी कुछ फिरके हैं, हाँ फिरके हैं, भारत में फिरके हैं, क्योंकि शुरू के हुआ जो बटाना, एक शिया, एक अहले सुन्नत में, फिर उसमें भी हो गया, मतलब गैर मुकल्लिद सुन्नी, हाँ। फिर सुन्नी में भी 4 बढ़ गया, हाँ। और सुन्नी में एक्चुअली पहले वो तो पूरा डिफरेंट टॉपिक है, पहले हम हदीस के बारे में बात करें, ठीक। जैसा एक उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कुरान को कंपाइल करके लाए थे, हाँ, एक कुरान को कंपाइल करके लाए। वैसा ही इमाम हनीफा के टाइम में क्या था, इमाम बुखारी के पहले, इमाम शाफी के पहले, और इमाम हाकिम के पहले बहुत से। लेकिन आप ये भी दे सकते हैं ना, किसका कौन किसका साबित है, हाँ ठीक है, हाँ, इमाम शाफी के साबित, वो भी बोलूँगा मैं। और
उस सन में जिस सन में इमाम शाफी पैदाइश हुए हैं हाँ। उसी सन में हाँ हजरत अबू हनीफा का वफात हुई है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं वो बोलूँगा, मैं वो भी बोलूँगा, मतलब साल में वो भी बोलूँगा। ठीक है, जैसा देखिए अभी जैसा सोर्सेस इमाम हनीफा के टाइम में कम थे, अभी वैसा इमाम शाफी के टाइम में थोड़े सोर्सेस बड़े थे और थोड़े सोर्सेस घट गए थे, नहीं थोड़े सोर्सेस बड़े थे। वैसे इमाम बुखारी के टाइम में और थोड़े ज़्यादा सोर्सेस थे, मतलब किताब के रिटर्न फॉर्म में थे उनके पास। बाद में क्या हुआ था, इधर अभी आते इमाम हनीफा के, इसमें इमाम हनीफा क्या कर रहे थे, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादातर हदीस, इनके हदीस ताबईन से मिलते हैं और ताबईन से ही आप देख लीजिए, और इमाम बुखारी के ज़्यादातर हदीस क्या बोलते हैं साहबियों से मिलते हैं, इसलिए उनको ये इसलिए उनको इमाम बुखारी को क्या ऐसा नहीं है। देखिए हजरत अबू बकर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ ठीक है, तो ये किताब को पहले लिखने वाले हैं, मतलब हदीस को जो है ना सभा सित्ता जो है ना, सभा सित्ता पहले इससे पहले और थे शागिर्द, उस्ताद में उस्ताद होते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे तो इमाम हनीफा के उस्ताद जो थे ना, यार उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, इमाम हनीफा के उस्ताद तो ये रफल से नमाज पढ़ते थे, इमाम हनीफा क्यों नहीं पढ़ते वैसा? इमाम हनीफा के उस्ताद तो रफतैन जो है, तो रफतैन है, ऐसा नहीं है, हाँ लेकिन रफतैन हजरत अबू हनीफा मानने वाले नहीं पढ़ते। हाँ बात रही कि रफतैन इससे ज़्यादा तो शिया लोग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं शिया लोग, शिया लोग करते हैं, उसके बाद अल-हदीस भी करते हैं, अल-हदीस के बाद फिर इमाम शाफी के फॉलो करने वाले भी करते हैं, रफतैन 1 या 2 करेंगे, हाँ वो तब करते हैं रफतैन की बात। फिर ये करते हैं क्योंकि वो फर्क के मुकाबले में नहीं आता, मुस्ताहब है, मुस्ताहब राइट, गलत बोला, रफतैन जो है ना ये मुस्ताहब में आता है। अगर आप कर लेंगे, अगर मुस्ताहब मतलब पसंदीदा में अगर आप कर लिए अच्छी बात है, जैसे कि वजू भी करते हैं ना, तो आप 3 बार अगर धो लिए हर अदा को, तो क्या होगा, सुन्नत ना अदा होगा। अगर 1 बार कर लिए तो फर्क ना आएगा, तो 1 बार कर लिए तो काफ़ी है, ठीक है, लेकिन 2 बार हाँ सुन्नत में आते हैं, वही इसी वजह से उससे बात है ना मुस्ताहब आते हैं, जो रफतैन जो है मुस्ताहब है। अब करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अब क्या ना, अब करना है तो आपको एक ही इमाम को फॉलो करके चलना, हाँ, लेकिन यहाँ पर आ जाता है बात के टकरावने का, मतलब अब दोनों करेंगे तो अब दोनों रास्ते में जाएंगे, तो आपको मतलब वजू नहीं है, किस बात पर वजू नहीं है, अब किसी लेडीज को छुए या किसी आपका पैर का एरी से खून निकलने लगा, आप बोलेंगे कि इसको फॉलो कर लेते हैं, कभी इसको फॉलो कर लेते हैं, इस पर क्या होता है, एक बेरा गलत हो जाता है इंसान, उनको फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। किताब में लिखा हुआ है जब आपका ये हवा निकलता है ना, हवा मतलब क्या पेशाब में इंटरनली कुछ निकलता है, जैसा पेशाब या पाक, बस इसको क्या आपको उर्दू का नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ये दोनों निकालने से वजू टूट जाता है, तो कैसा बोल रहे हैं, होगा नहीं ना, वजू दोनों टूटता है। इस औरत को छू लिया ना, इस बात पर या आप एरी टूटे हुए फटा हुआ ऐसे उसको मत फर्क नहीं, खून निकल गया, हाँ, लेकिन आपको देखेंगे आप मेरे एरी फट गया, ये तो इमाम शाफी नज़दीक तो वजू नमाज हो जाता है, तो आप नमाज पढ़ लेंगे, फिर नमाज पढ़ लेंगे, सुनिए नमाज पढ़ लेंगे, आप नमाज पढ़ लेंगे, हाँ, उनके बाद आप जोहर की नमाज हो, उसका असर की नमाज में आप आए हैं, किसी लेडीज़ को छू लिए था, ठीक है, तो आप सोचेंगे यार इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तो वजू टूट जाता है, लेकिन इमाम शाफी नज़दीक तो वजू टूटता है, तो आप फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप दोनों काम करेंगे, इसी बिना पर इसी को फॉलो करना चाहिए। हदीसा क्यों है मेरे पास, हदीसा है, हदीस में क्या है, जब भाई वैसा है तो इमाम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जा रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाए तो अपनी बीवी आए तक अपनी बीवी को ऐसा रहता था, क्योंकि अंधेरा था, क्योंकि दिखाई नहीं वही बात है, इमाम शाफी के नज़दीक खुल जाता है ना, तो वो दलील दे रहे हैं ना, दलील दे रहे हैं ना,
वही ना बोले कि आपको इमाम शाफी फॉलो करना कीजिए, कोई फर्क नहीं है। नहीं भाई, नहीं तो वो टाइम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू क्यों नहीं तोड़े थे, नमाज क्यों नहीं तोड़े थे, वो मेरा क्वेश्चन है। वो टाइम में नमाज तोड़ना चाहिए था, क्यों नहीं तोड़े? वही तो बोले हैं, तो इसको तो इमाम शाफी फॉलो कर रहे हैं ना। कहाँ पे कर रहे हो? वो बीवी को छूने से सीधा वज़ू टूट जाता है, मुझे बोल रहे हैं। तो इमाम अबू फॉलो कर रहे थे। हाँ, तो इमाम अच्छा ठीक है, इमाम है। अरे नहीं हो रहा है। नहीं छोड़